Many of the new are joined today. Okay, so let me start with the product portfolio first. So in Catalyst, तो हम लोग के पास जो Catalyst का version है, that's a worst Catalyst version, right? So वहाँ पे wireless में काफी सारा product है, including wireless controller and wireless access point. So currently we have 9,000 Catalyst access point and uh, Catalyst 9,000 series access point. Okay, so this is our Catalyst 9,000 series access point. Okay, which is starting from 9105 to 9172. Okay, which is from small business to low density to high density, large business, from 2x2 to 8x8. Okay, it depends on the user density. It depends on the customer environment. It depends on the how is the customer architecture, means customer building architecture, right? So before deploying any wireless solution, so site survey is the main parameter, number one. Second parameter is the what is the customer use cases and the customer requirements, right? So in 2x2, generally there will be 25 to 30 client will be supported. In 4x4, 40 to 45 to 50 clients, and 8x8, it will up to 70 to 75 clients can be supported in a single access point, right? So let me show you all the access points. Okay. Okay. So this is our this embedded wireless access point is currently not in actually end of life and end of sale by Cisco, right? Any wireless solution, you need to cater the wireless controller along with wireless controller, starting from Catalyst 9800L to 980040 and 980080. That is 3 segment: small segment, medium size campus deployment, and large data center service provider. Okay, or any large campus deployment, right? And the CL version. CL means cloud version. Sorry, cloud version. But it is not the cloud hosted. It can be cloud hosted, but customer need to purchase separate instance in cloud. Okay, either it can be AWS, it can be GCP, it can be Azure, right? Or it can be VMware or hypervisor. Got it? To deploy the 9800 CL version. Only software and the licenses can be provided by Cisco. Raise the platform can be, platform can be provided by the customer only, right? KVM, right? AWS, Azure, GCP, okay? Google Cloud, that is the GCP, right? Those all are the Meraki industrial access points. IW means industrial wireless access points. Okay, these are the industrial wireless access points, right? And those are the this is also a outdoor access point. This is not the industrial. This is outdoor access point. Catalyst 9124I. I for internal antenna, and 9124E means external antenna, right? And D also, D for the, once again, what is the D for? D for most probably bidirectional antenna. 1 minute.
No, not indoor. That is truly outdoor access point. A truly outdoor access point. Sorry. We donate as directional antenna, right? Internal directional antenna. Directional antenna means suppose customer wanted signal to a particular directional, right? Suppose you are going to a campus जहाँ पे आप देखते हो कि पीछे दीवार है और सामने जो है कस्टमर का जो यूज केस है पीछे पीछे कस्टमर का दीवार है जो सिग्नल चाहिए कस्टमर को वो सामने चाहिए जो भी यूजर काउंट होगा वो सामने होगा तो उसको ओमनी डायरेक्शनल देने से फायदा नहीं है ओमनी डायरेक्शनल क्या होता है वो 360 डिग्री रोटेशनल सिग्नल होता है राइट लेकिन डायरेक्शनल में क्या होता है वो एक साइड में आप जिस साइड पे एंटेना को डायरेक्शन करोगे उस साइड सिग्नल थ्रो करेगा तो अगर कस्टमर का ऐसा यूज कैसा है कि कस्टमर को सामने दिख में या कोई भी एक पर्टिकुलर 90 डिग्री या 45 डिग्री एंगल पे राइट सिग्नल चाहिए तो उसके लिए यूज केस है डायरेक्शनल एंटेना राइट गॉट इट ओके ओके सो नेक्स्ट हम लोग का इंडोर पे आता है 9130 9120 इज अवर विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एज वेल राइट 9105 basically 9105W basically we are proposing in any hotel or hospital any hospitality environment it is basically designed for the in-room access point okay where it has a WAN port as well as the LAN ports I mean there is four separate dedicated LAN port राइट जहाँ पे आपका रूम पे एक्सेस पॉइंट लगेगा और बाकी बाकी पोर्ट से वो लोग कोई टीवी कनेक्ट होगा तो फोन कनेक्ट होगा राइट तो कोई डेटा पॉइंट कनेक्ट होगा सो ऐसे जो होटल पे एनवायरनमेंट में जैसे कनेक्टिविटी रहता है वैसे इसको डिजाइन किया गया हुआ है इट हैज टोटल 5 पोर्ट ओके 9160 this is the outdoor access point newly launched outdoor access point 916264 all are the Wi-Fi 6E catalyst access point okay let's come to the Meraki product Meraki MR तो मेराकी का मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मेराकी जो है टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईएन और कैटलिस्ट वर्जन एक्चुअली देयर इज टू फ्लेवर इन सिस्को वन इज कैटलिस्ट अनदर इज मेराकी तो मेराकी इज अ क्लाउड डिलीवर्ड नेटवर्क सोल्यूशन राइट नॉट cloud network solution it is cloud delivered network solution okay so everything in network Meraki network everything managed the entire network stack can be managed monitored troubleshoot client monitoring everything is done from the cloud only okay there will be one dashboard that is hosted in cloud data center Cisco data center okay customer no need to purchase any instances cloud instances for that it is absolutely free with the licenses right customer just need to purchase the hardware and the license only okay the dashboard and the cloud instances is absolutely free to customer so Meraki cloud Meraki is hosted in the cloud environment so customer need to just need one internet connection okay to get access on the dashboard and he will get the entire the network stack in front of him this is a single glass of pane architecture okay where customer can manage monitor and troubleshoot the entire network stack either it can one single branch or single headquarter or can be multiple branch or multiple network right so customer can create the multiple network under one single organization okay
Suppose customer having headquarter in Kolkata and multiple branches in Delhi, Mumbai, Chennai, Kerala, okay, Delhi, right? So he can create the multiple network along with the name of Delhi branch, okay, a Mumbai branch, uh, suppose Bangalore branch, Chennai branch, and he can manage the all the network from a single glass of pane. That is one single dashboard, and that is secured by two-factor authentication. Okay, I'll show you later how you can create a organizations and how you can create the network and how you can manage the network, how it can see how it is network is showing under one single organization, how switch stacks, wireless stacks can be shown, right? So this is our Meraki wireless product portfolio. Right now Cisco is doing the Catalyst and Meraki merger. Catalyst 9000 series switches and wireless access points, sorry, not routers, wireless access points are come up with two flavor. One is Catalyst flavor, one is Meraki flavor. Okay, the same switch or same access point is coming up with two operating system. Okay, one is Meraki, one is Catalyst. So customer can manage through Catalyst version as well as with the Meraki dashboard. But this is limited, right? The Meraki version product is limited now. Okay, all the product is not coming right now. कुछ कुछ डिवाइस ही आया हुआ है जो कि Meraki Catalyst 9000 सीरीज का Meraki में मिल रहा है, जैसे कि CW9176i. ओके, सो ये प्रोडक्ट आपको Meraki में भी मिलेगा और Catalyst में भी मिलेगा, राइट? तो अगर कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीदता है, he can manage through Meraki as well or the Catalyst. 9172, ठीक है, 9172i, 9 CW Cisco Wireless 9162 6466 66D1. ओके, ये सारा जो 9000 सीरीज है ये दोनों फ्लेवर पे आ रहा है, काटलेस फ्लेवर पे भी आ रहा है, Meraki फ्लेवर पे भी आ रहा है. देन ट्रूली Meraki फ्लेवर पे MR57. तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा, उसका स्पर्शल स्ट्रीम क्या है, ठीक है, कितना बैंड पे काम कर रहा है, व्हाट इज द फ्रेम रेट, एग्रीगेशन थ्रूपुट. ओके, राइट. MR28 इज अ वेरी बेसिक एक्सेस पॉइंट. हम लोग ये बेसिकली दिस इज कॉरिडोर एक्सेस पॉइंट, बट ये वेरी बेसिक एक्सेस पॉइंट है, लाइक MR36H. ठीक है, MR36H एज ये एकदम बिल्कुल 9105W की तरह है, जो कि designed for the hotel or the hospitality purpose, right? MR46E, this is indoor access point come with external antenna. This is the only access point which has come with external antenna. The only indoor access point that is come with external antenna. Okay. वैसे हम लोग का MR76 है, MR78 है जो कि आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, जो कि एक्सटर्नल एंटेना के साथ आता है. MR86 CW9166 ये भी कैटलिस्ट का वर्जन है, और कैटलिस्ट में भी है और Meraki में भी है. ओके, तो लाइसेंसिंग का एसक्यूज बहुत सिंपल एसक्यू है Meraki में, जो कि है LIC ENT. ये एक 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर पे मिलता है. और एक है एडवांस लाइसेंस और एक है अपग्रेड. मान लीजिए कि कस्टमर ने लाइसेंस एंटरप्राइज लाइसेंस खरीदा है, लेकिन वो 1 साल बाद वो उसको अपग्रेड करना चाहता है एडवांस लाइसेंस में, तो वो उसके लिए अपग्रेड लाइसेंस है. ठीक है, राइट. और जो कैटलिस्ट पे लाइसेंसिंग पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द
essential and advantage license. So essential license, advantage license is very necessary in Catalyst to connect any access point with the wireless controller. तो विदाउट लाइसेंसिंग एसेंशियल और एडवांटेज लाइसेंसिंग आप कंट्रोलर के साथ एपी को कनेक्ट नहीं कर पाओगे. तो दिस इज मैंडेटरी एंड ये स्मार्ट अकाउंट इज नेसेसरी क्योंकि सिस्को में स्मार्ट अकाउंट के साथ ही वो लाइसेंसिंग अडॉप्ट होता है स्मार्ट अकाउंट में. और स्मार्ट अकाउंट को जैसे ही आप कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करोगे दैट टाइम इट विल integrated with smart account and fetch the licensing part, right? Any question? Any question, guys? Okay. Okay. तो किसी को कुछ आइडिया है WLC किसी ने कहीं भी कॉन्फ़िगर किया है सिस्को में एक्सेस पॉइंट WLC? एनीवन? एनी आइडिया? डैशबोर्ड किसी ने देखा है पहले कभी भी? हेलो हेलो. हाँ हाँ, यस मैंने किया है. मैंने देखा है कहीं एक जगह पे जो WLC सॉफ्टवेयर बेस होता है, जो मैंने किया था. अच्छा क्लाउड बेस्ड एपी बेस जो कंट्रोलर होता है, मैंने उसमें किया था. अच्छा एपी बेस्ड कंट्रोलर मतलब EWC में आपने किया? करेक्ट करेक्ट. नॉर्मल जो डिवाइस हार्डवेयर बेस में मैंने किया था. ओके 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 तो मोरलेस एक ही है. हार्डवेयर पे थोड़ा फीचर्स जो है थोड़ा ज्यादा आता है जैसे कि L3 लेवल पे उसको रेडियस को अकोमोडेट करना, रेडियस को इंटीग्रेट करना, ठीक है, ऑथेंटिकेशन को ज्यादा उसको इनेबल करना, right? ओके. और काफी सर्टिफिकेट ये सब है, बहुत कुछ ज्यादा फीचर्स मिलता है. और ऑफ कोर्स थ्रूपुट ये सब अलग है, ठीक है. तो थोड़ा सा 9800 के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं. व्हाट सिस्को 9800 कैन ऑफर. ओके सो ये कंट्रोलर है, ठीक है. ये कंट्रोलर पे आपको चार चार पोर्ट, दो SAP पोर्ट मिलेगा दैट इज 10G, ओके, एंड वन सर्विस पोर्ट, वन मैनेजमेंट पोर्ट, वन कंसोल पोर्ट, एक मिनी कंसोल पोर्ट और एक USB पोर्ट. ओके तो इसमें दो वर्जन आता है, वन एक LF और LC. अगर LF हुआ तो दो SFP आएगा, अगर LF नहीं हुआ तो LC हुआ तो RJ45 आएगा, ठीक है. दो मॉडल यहाँ पे मिलता है, इट डिपेंड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, राइट. अभी अभी इसका ये क्या क्या सपोर्ट करता है, ठीक है. इसमें सपोर्टेड है बाय डिफॉल्ट 250 एक्सेस पॉइंट. 250 एक्सेस पॉइंट तक कस्टमर इसको यूज कर पाएगा, ठीक है. अगर कस्टमर के पास 250 से ज्यादा एक्सेस पॉइंट है, मान लो कि 250 के ऊपर कस्टमर ने एक WLAN खरीदा है, उसके साथ 240 एक्सेस पॉइंट खरीदा है, ठीक है, और एक कंट्रोलर खरीदा है, ठीक है. तो कंट्रोलर चल रहा है, एक्सेस पॉइंट चल रहा है. एक साल बाद कस्टमर का एक बिल्डिंग नया बना हुआ है, उसमें और 50 एक्सेस पॉइंट लगेगा.
तो कितना हुआ 240 प्लस 50 290, राइट। लेकिन ये तो सपोर्ट करता है 250, तो उसके हिसाब से क्या होगा, क्या नया कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा अपडेटेड वर्जन? नहीं, उसको एक परफॉर्मेंस लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, दैट्स इट। जैसे ही परफॉर्मेंस लाइसेंस खरीद लिया और वो लाइसेंस को उसको कंट्रोलर को लाइसेंस इनेबल कर दिया, तब immediately that controller will be boost up to 250 access point to 500 access point, 5000 client to 10,000 client, throughput 5 Gbps throughput to 10 Gbps throughput, right? तो वो बूस्ट अप हो जाता है परफॉर्मेंस लाइसेंस से, उसका परफॉर्मेंस जो है बूस्ट हो जाता है, ठीक है। बूस्ट होकर वो बाकी जो एक्सेस पॉइंट है उसको कैटर कर लेगा अप टू 500 तक। अगर 500 क्रॉस कर जाता है तो तब कस्टमर को 980040 वाला जो एक्सेस कंट्रोलर है इसका अपग्रेडेड वर्जन उसको कैटर करना पड़ेगा। बट इट आपको डेटा शीट में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, व्हाट इज द पावर सप्लाई, व्हाट इज द फिक्स्ड अपलिंक, ओके। यहाँ पे आपको दो टाइप का कंट्रोलर मिलेगा, एक एक होता है फिक्स्ड अपलिंक के साथ कॉपर 10G मल्टीगिग और 10G मल्टीगिग फाइबर, ओके, जो कि एल एफ और एल सी है, सी फॉर कॉपर, एफ फॉर फाइबर। दो अलग अलग मॉडल है। इट साइजिंग डिपेंड ऑन द कस्टमर यूज केसेस, ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, राइट। स्मार्ट लाइसेंस एनेबल्ड, इसमें स्मार्ट अकाउंट चाहिए, ओके। राइट, व्हाट इज द डायमेंशन, ठीक है। इसके साथ ये छोटा छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। इट इज 9 इंच विथ, सॉरी, हाँ, विथ 8.5 इंच। 8.5 इंच मीन्स ये रैक 19 इंच रैक में नहीं आएगा, इसके लिए एक माउंटिंग ब्रैकेट लेना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो मेरा 10 इंच है उसको कैटर कैटर कर जाएगा और इसको ये उस 19 इंच रैक में फिट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रंट पैनल है, एल सी, सी फॉर कॉपर और एल एफ, एफ फॉर फाइबर। फाइबर पे फाइबर पोर्ट आएगा और एल सी कॉपर पे कॉपर पोर्ट आएगा, बोथ आर 10G मल्टी की, ओके। यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको ओपनली मिल जाएगा। और ये है आपका रियर पैनल। रियर पैनल में आपको बस एक पावर अडेप्टर मिलेगा जो कि 110 WAC का है, ओके। ओके, तो मैं आपको थोड़ा लाइसेंसिंग का दिखा देता हूँ। और लाइसेंसिंग का जो चल ही रहा है तो लाइसेंसिंग पार्ट पहले दिखा देता हूँ कि कैसे लाइसेंस हम लोग इनपुट करते हैं। ये देखो, दिस इज, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हियर यू कैन फाइंड आउट द इन लेफ्ट हैंड साइड लाइसेंसिंग टैब, ओके। लाइसेंसिंग टैब में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जनरल सर्विस सेटिंग पॉलिसी एट्रीब्यूट, राइट। यहाँ पे चेंज वायरलेस लाइसेंस लेवल, इसको चेंज करना पड़ता है। आपको कस्टमर के पास देखना पड़ेगा कि कस्टमर ने कौन सा लाइसेंस इसक्यू खरीदा है, एसेंशियल और एडवांटेज। यहाँ पे आपको एसेंशियल सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपने एसेंशियल खरीदा है तो। अगर कस्टमर ने एडवांटेज खरीदा है तो एडवांटेज सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको सेव एंड रीलोड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद सर्विस सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोकन जनरेट टोकन बोल के स्मार्ट अकाउंट सॉफ्टवेयर मैनेजर में जाके यहाँ पे टोकन जनरेट करना पड़ता है स्मार्ट अकाउंट से। दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। आप अगर यहाँ पे देखोगे जनरेट टोकन इन स्मार्ट अकाउंट,
स्मार्ट अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये ऐसे स्मार्ट अकाउंट का डैशबोर्ड आता है। आई थिंक मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है, राइट? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा स्मार्ट अकाउंट लाइसेंसिंग इन्वेंटरी पे जाके यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग दिखाई देगा। ठीक है, कि आपने कौन सा लाइसेंसिंग खरीदा है, राइट? खरीदने के बाद जनरल पे जाके यहाँ पे न्यू टोकन टैब में क्लिक करने के बाद आप ऐसे टोकन जनरेट कर पाओगे, क्रिएट टोकन। ओके, तो ये टोकन जो है इसको कॉपी करना पड़ता है, राइट? कॉपी करके अपने नोटपैड पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ गए, सिस्को कंट्रोलर पे आ गए, नेक्स्ट किए, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है टोकन आईडी। टोकन आईडी को जो नोटपैड में आपने टोकन आईडी कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, डीएनएस सर्वर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप गूगल डीएनएस सर्वर भी दे सकते हो। ठीक है, 8.8.8.8 जो कि इंटरनेट फेसिंग है। हाँ, जो आपका अपलिंक इंटरफेस होगा वो दैट हैज टू बी इंटरनेट कनेक्शन। ओके, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो वो स्मार्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इंटरनेट कनेक्शन इज मैंडेटरी। तो डीएनएस सर्वर देने के बाद जैसे आप सेव करोगे तो वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? ओके, सो हो गया। तो अभी हम लोग थोड़ा डैशबोर्ड के बारे में देखते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में जो है, डैशबोर्ड में क्या है, देयर इज नेटवर्क 6 gigahertz, 5 gigahertz, 2.4 gigahertz, all are open, but 6 gigahertz is currently just recently launched, recently passed in Indian territory. Okay, but many of use cases currently don't use any. Yes, you are audible. हाँ, बोलिए। हम्म। नहीं नहीं नहीं, तुम मिक्स कर रहे हो। देयर इज टू टाइप ऑफ लाइसेंस। एक है आपका एसेंशियल एडवांटेज लाइसेंस। एसेंशियल एडवांटेज लाइसेंस को आप कंट्रोलर पे परचेस नहीं करते हो। एसेंशियल एडवांटेज लाइसेंस इन कम्स अप विथ एपी ओनली। कंट्रोलर के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता है। ठीक है, कंट्रोलर के लिए बस कंट्रोलर, आप अगर कंट्रोलर सिस्को से कोई खरीदता है, ठीक है, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता है। एक मिनट में कॉल अटेंड कर लेता हूँ, एक मिनट है। हाँ सॉरी, हाँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था। अच्छा, जो मैं बोल रहा था कि कंट्रोलर के साथ कोई लाइसेंस नहीं लगता है। ठीक है, कंट्रोलर पे एक ही लाइसेंस होता है, दैट इज बूस्टअप लाइसेंस। अगर कस्टमर को जरूरत पड़े तो दैट इज परफॉर्मेंस लाइसेंस। जो एसेंशियल और एडवांटेज लाइसेंस है दैट विल बी परचेस्ड विथ एपी। एक्सेस पॉइंट के साथ कस्टमर एडवांटेज और एसेंशियल लाइसेंस खरीदता है। क्लियर?
See, no licenses are required to boot up a Cisco Catalyst 9800 series wireless controller. Okay. However, in order to connect any access point to the controller, Cisco DNA software subscription are required to be able to connect to a Catalyst 9800 series controller. Each access point requires a Cisco DNA subscription license. Understood? Catalyst 9800 में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है? जो एपी कस्टमर खरीदेगा उसके साथ एसेंशियल और एडवांटेज लाइसेंस खरीदेगा जो कि कस्टमर का 9800 के साथ इंटीग्रेट होगा. दैट्स इट. राइट? ओके. सो नेक्स्ट है कहाँ पे था? हाँ, तो 6 गीगाहर्ट्ज अभी तक रोल आउट नहीं हुआ, और हुआ है रोल आउट बट रिसेंटली हुआ है, लेकिन बहुत ही कम नेटवर्क में अभी यूटिलाइज हुआ है. इन फ्यूचर शायद R&D होने के बाद वो 6 गीगाहर्ट्ज लॉन्च होगा, अभी तक नहीं हुआ. एनीवे हम लोग जनरली 6 गीगाहर्ट्ज को ऑफ ही रखते हैं. तो ये तो सिस्को का डिक्लाउड डेमो है जो कि कुछ बाहर, इंडिया के बाहर कई लंदन वंदन में ये मतलब होस्टेड किया हुआ है. तो वहाँ पे सिंगापुर में शायद होस्टेड किया हुआ है. एसएनजी है तो सिंगापुर है, शायद एसएनजी होगा. हाँ, एसएनजी भाई सिंगापुर. तो सिंगापुर में हुआ है, तो वो वहाँ पे शायद 6 गीगाहर्ट्ज रोल्ड आउट हो चुका है, तो इसलिए ये अब दिखा रहा है. तो वायरलेस लैन मीन्स कितने एसएसआईडी है आपके यहाँ पे दिखाएगा. हाउ मेनी एक्सेस पॉइंट्स आर कनेक्टेड यहाँ पे दिखाएगा. हाउ मेनी क्लाइंट्स आर कनेक्टेड यहाँ पे दिखाएगा. हाउ मेनी रॉग एपीज आर कनेक्टेड यहाँ पे दिखाएगा. एंड इफ देयर एनी इंटरफेरेंस. ओके. Okay, system information, what is the host name, device uptime, system time, device type, boot image, FIPS mode, ठीक है, ये सब यहाँ पे दिखाएगा. और CPU एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा. ओके. अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो हम लोग एट वेरी फर्स्ट जो हम लोग के पास नया बॉक्स आता है, तो बॉक्स में हम लोग पहले मैनेजमेंट इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं थ्रू CLI पे. इसको कंसोल पे कनेक्ट करने के बाद इसका सिस्को यूजर नेम, डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है. लॉगिन करने के बाद मैनेजमेंट इंटरफेस में कनेक्ट करते हैं. मैनेजमेंट इंटरफेस को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके मैनेजमेंट आईपी के साथ इसमें वेब जीयूआई पे लॉगिन करते हैं. ओके. वेब जीयूआई पे लॉगिन करने के बाद आपको एकदम ब्लैंक एक मिलेगा कंट्रोलर, जो कि ऐसे ही दिखेगा. ये ब्लैंक कंट्रोलर है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगर किया नहीं हुआ अभी तक, और मैं भी इसमें कॉन्फ़िगर शायद कर पाऊँ, हो सकता है. एनीवे, कॉन्फ़िगर करने के बाद, हाँ ये मैं कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा क्योंकि ये वी क्लाउड है, लैब सेटअप है. हाँ कर पाऊंगा, ठीक है. तो ऐसे ही दिखाएगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. तो पहले हम लोग यहाँ पे जो है एथरनेट कॉन्फ़िगर करते हैं. ठीक है, जो कि गीगाबिट एथरनेट 1 से कनेक्टेड है करंटली. भैया टोपोलॉजी क्या बोलता है? ओके, सो दिस इज द टोपोलॉजी. ओके, तो टोपोलॉजी पे स्विच है, विलन है, राइट, सर्वर है, कंट्रोलर है, वर्क स्टेशन है, एंड सिस्को आइस है. राइट. और यहाँ पे एक एंड पॉइंट किट है कि रिमोट और इंटरनेट के थ्रू है, यानी कनेक्ट सिस्टम कनेक्टेड है. दिस इज माय टोपोलॉजी. तो टोपोलॉजी के हिसाब से ये कोड स्विच पे कनेक्टेड है. विलन प्राइमरी, दिस इज द विलन. ओके, दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड. ट्रंक पे है ताकि सारा विलन को हम लोग इस इथरनेट से पास कर पाए. सारा विलन के क्यों पास करेंगे? सपोज कस्टमर के पास मल्टीपल विलन है, वाईफाई विलन है,
गेस्ट विलन है जो कि गेस्ट यूजर के लिए है। मान लो कि कस्टमर के पास रेडियस है, रेडियस से वो गेस्ट मैनेजमेंट करके रखा है। कोई भी गेस्ट आएगा तो कोई एक एसएसआईडी, पर्टिकुलर एसएसआईडी में, गेस्ट एसएसआईडी में कनेक्ट करेगा तो उसको उसी पर्टिकुलर गेस्ट विलन से उसको आईपी एड्रेस मिलेगा, और कस्टमर जो है इंटरनेट यूज कर पाएगा फॉर ए सर्टेन लिमिटेड ऑफ टाइम, that will be managed by the Cisco ICE or the Cisco radius server or any other third party radius server। ठीक है, तो उसके लिए गेस्ट विलन है, वायरलेस मैनेजमेंट विलन है। ठीक है, सिर्फ मैनेजमेंट विलन है, वायरलेस विलन है जो कि जो कि सारा जो वायरलेस को मैनेज करेगा वैसा विलन है। जो कि एम्प्लॉय के लिए एक अलग एसएसआईडी बना हुआ है, उसके लिए एक अलग विलन है। मान लो कि एचआर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग विलन है, ऐसे कैंपसिंग में भी होता है। कैंपसिंग में एक बिल्डिंग के लिए, एक लोकेशन के लिए एक अलग विलन बना दिया, जो भी वायरलेस में कनेक्ट होगा उस विलन से उसको आईपी मिलेगा, राइट। तो सारा विलन को ट्रैफिक पास करने के लिए हम लोग स्विच पोर्ट को ट्रंक बनाए हैं। ओके, हो गया। इसको आप L3 भी बना सकते हो। अगर मान लो कि आपने कोई एक पर्टिकुलर विलन को पास करवाना है तो आप इसको L3 भी बना सकते हो। L3 पोर्ट बना के भी आप इसमें आईपी डाल के इसको एज ए गेटवे भी यूज कर सकते हो। ओके, तो हम लोग फिलहाल इसको ट्रंक पे ही रखते हैं L2 में, और हम लोग विलन इंटरफेस से सारा ट्रैफिक को पास आउट करेंगे। दिस इज द मेन कंसेप्ट। अब चाहते हैं वायरलेस में, वायरलेस मैनेजमेंट विलन 11। इस मैनेजमेंट मतलब ये जो आईपी है, इस आईपी से, सॉरी ये आईपी नहीं, सॉरी ये आईपी /24 पे बना हुआ है। इस आईपी से सारा एक्सेस पॉइंट को आईपी मिलेगा। ओके, दिस इज द वायरलेस मैनेजमेंट इंटरफेस विलन, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्टली, हो गया विलन मैनेजमेंट वायरलेस। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम। हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम चेंज करेंगे। ठीक है, टाइम चेंज हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसको रेगुलेटरी डोमेन सेट करना। रेगुलेटरी डोमेन मीन्स इसको हैविंग सम सिक्योरिटी, कि आपका जहाँ पे ये परचेस्ड है, मान लो कि कस्टमर ने परचेस किया है इंडिया का लोकेशन, इंडिया का एड्रेस से। ठीक है, तो इंडिया हैविंग एन रेगुलेटरी डोमेन इन सिस्को डेटाबेस। ओके, तो वो एक्सेस पॉइंट को आप इंडिया के बाहर यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे आप बाहर यूज करने जाओगे, दैट विल आस्क फॉर ए एक्सपोर्ट कंट्रोल लाइसेंस। ओके, मान लो कि कस्टमर ने किसी ने एक एक्सेस पॉइंट खरीदा है अमेरिका के लिए। ठीक है, अब अमेरिका से वो उसको चोरी करके या कुछ भी करके इंडिया लेके आया हुआ है, तो एक्सेस पॉइंट को इंडिया का टाइमिंग में और इंडिया का इसमें एक्सेस यूज नहीं कर पाएगा। that will ask for the export control licenses। okay,
जैसे एक्सपोर्ट कंसोल लाइसेंस मांगेगा दैट विल बी आस्क फॉर द स्मार्ट अकाउंट क्रेडेंशियल। ओके, तो हर एक डिवाइस के लिए सिस्को ने रेगुलेटरी डोमेन सेट किया हुआ है। ठीक है, तो सिस्को का एक्सेस पॉइंट के लिए रेगुलेटरी डोमेन है डी फॉर इंडिया। ओके, आई शो यू। Here is the X. X means regulatory domain. X is equal to regulatory domain. Okay. So what is a regulatory domain? That is set by Cisco. Right. See, here is the for Afghanistan, for Albania is E. Okay. Argentina A. Right. Austria E. Australia Z. So there is multiple regulatory domain, different regulatory domain for India. Okay, it's D, right? And for the outdoor, it is rho. Okay, for Kenya, E and rho. Rho is very common. Rho we can use in multiple countries, but for indoor access point and outdoor access point, and it is very strict for the router and the security devices like firewall, okay, like any security appliances like proxy server, okay, Cisco eyes. Those security for the security devices and for the router is also a security device, right? So security devices and for the routers, it is very strictly maintained by Cisco. Okay, got it? Okay, so let's come to the point, right? So हम लोग कहाँ थे? हाँ, let's come to the हम लोग को क्या सेट करना पड़ेगा? रेगुलेटरी डोमेन. So what is the domain? Our country, it is India, right? So we set it to India. यहाँ पे काफी सारा सेट किया हुआ है because ये क्लाउड है, डी क्लाउड है, right? तो डी क्लाउड में हम लोग जनरली नहीं करते. पूरा सेट किया ये डी क्लाउड है इसलिए सब जगह से एक्सेस होता है, तो इसलिए ये सारा कुछ किया हुआ है. तो एनीवे, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं. सॉरी, इंडिया को करते हैं हांगकॉन्ग कंट्री कोड. ओके, तो इट इज सेट, इट इज वेरी मैंडेटरी. ये आई अगर आप कंट्री कोड नहीं देते हो तो एक्सेस पॉइंट जो है इसके साथ कंट्रोलर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस पॉइंट जो आता है वो कंट्री कोड के साथ मैन्युफैक्चरिंग होके आता है, जो कि -D है, डी नोटिंग नोटिंग के साथ, जो कि सिस्को के पास IN है. ठीक है, इंडिया. तो अगर इस यहाँ पे कंट्री कोड गलत रहा, अगर कंट्री कोड सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो कंट्रोलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी कंट्रोलर पे कंट्री कोड दे दिया IN, और वहां पे भी सिस्को एपी में भी जो है वो कंट्री कोड -D है, जो कि डिनोटेड एज इंडिया IN. ओके, जो रेगुलेटरी डोमेन है D इज इक्वल टू IN कंट्री कोड. करेक्ट? तो इस कॉन्फ़िगर हो गया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आवर पॉलिसी. पॉलिसी आप डिफॉल्ट में भी चला सकते हो और यू कैन
do your own policy, configure your own policy. ठीक है, यहाँ पे आपने एक पॉलिसी का नाम दे दिया, सपोज देयर विल बी सिस्को पॉलिसी। डिस्क्रिप्शन सिस्को पॉलिसी, स्टेटस हैप्पी मैक बाइंडिंग एनेबल्ड। हैप्पी मैक बाइंडिंग मतलब वो काफी टाइम तक आईपी और मैक को पकड़ के रखेगा जब तक वो डीएनएस को फ्लश नहीं कर देता। ठीक है, सेंट्रल ऑथेंटिकेशन is must be enabled, central switching must be enabled, that is those, and central DSCP अगर आपका, हाँ सेंट्रल DSCP is required because आपका कंट्रोलर इज इन having one मैनेजमेंट DSCP सर्वर जो कि एपी को तो आईपी दे रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल स्विचिंग, सेंट्रल ऑथेंटिकेशन एंड सेंट्रल DSCP that has to be enabled, right? Access policy, if you want any VLAN tagging, right, so you can tag it. Okay, for this particular policy, मान लो कि ना आपने एक पर्टिकुलर SSID कॉन्फ़िगर किया, उस SSID में अपने एम्प्लॉय के लिए कॉन्फ़िगर किया ये पॉलिसी, और वो SSID एम्प्लॉय यूज करेगा, और ये पर्टिकुलर पॉलिसी वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए है, तो एम्प्लॉय विलन के लिए है। तो उस SSID में आप ये पॉलिसी असाइन कर दोगे तो इसी विलन विलन से आईपी मिलेगा उसको। ठीक है, any question guys so far? Guys, any question? No question? Okay, okay. So यहाँ पे सेशन टाइम आउट है, आइडल टाइम आउट है, that will be you can define for a डिफॉल्ट आप रख सकते हो। इफ DSCP रिक्वायर्ड, ठीक है, आईपी DSCP सर्वर, अगर मान लो कि आपने कोई एक्सटर्नल DSCP सर्वर, आप इस पॉलिसी को असाइन कर सकते हो, दैट यू कैन असाइन इट हियर, राइट? ट्रिपल ए पॉलिसी, ओके, अगर ट्रिपल ए पॉलिसी, यहाँ ट्रिपल ए पॉलिसी मीन्स रेडियस पॉलिसी, तो यहाँ पे आपको आप डिफाइन कर पाओगे। ओके, का कोई फैब्रिक प्रोफाइल रहा, लिंक लोकल ब्रिजिंग रहा, माने कोई लिंक को आप जो कि है कंट्रोल एपी को जो कि है ब्रिज के हिसाब से यूज करना चाहते हो। ठीक है, कोई लिंक, कोई पर्टिकुलर लिंक को जो कि आपका कंट्रोलर पे टर्मिनेट है, दैट विल बी ब्रिज फ्रॉम लैन टू वैन और लैन टू लैन और वैन टू लैन, राइट? सो दैट कैन बी हियर। ओके, राइट? ठीक है, बस कोई क्वेश्चन कुछ करो, एनीवन? गोविंदो?
हेलो। ओके, तो मोटा मोटा यही है पॉलिसी। उसके बाद आप यहाँ पे RF रेडियो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जनरली हम लोग इसको डिफॉल्ट में ही रखते हैं, कोई भी RF प्रोफाइल को। ओके, डिफॉल्ट पे ही रखते हैं। टैग्स में हम लोग SSID को यहाँ पे डिफॉल्ट पॉलिसी टैग के साथ डिफाइन करते हैं। कोई भी SSID WLAN प्रोफाइल जो है, WLAN प्रोफाइल कॉन्फ़िगर नहीं है, सो उसको कोई WLAN SSID को बना के इसमें डिफॉल्ट पॉलिसी टैग या कोई भी पर्टिकुलर आप अगर पॉलिसी टैग बनाते हो, ठीक है, तो टैग के साथ मैपिंग करना पड़ता है। ये अगर मैपिंग नहीं करोगे तो SSID ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ठीक है, उससे नहीं करोगे तो मुझे भी लगता है कि पूरा म्यूटेड हो जाता है। रिस्पॉन्स तो करो। एनीवे, ठीक है, तो लेट्स कॉन्फ़िगर वन WLAN। ओके, वैसे तो बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने को, उतना तो टाइम भी नहीं है और मैं उतना टाइम दे भी नहीं पाऊंगा। तो मोटा मोटा मैं कॉन्फ़िगरेशन बेसिक में आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपका वायरलेस कंट्रोलर जो है खड़ा हो जाएगा, एक नेटवर्क में ऑपरेटेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कस्टमर का जो यूज केस है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप उसको डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, जो मोटा मोटा कॉन्फ़िगरेशन है वो करने से आपको कंट्रोलर जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा नेटवर्क में। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरिंग वन WLAN। ठीक है, एक WLAN कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको देते हैं सिस्को अंडरस्कोर सपोज ABC। ठीक है, ऐसे साइड उसी को रखते हैं। WLAN ID स्टेटस एनेबल्ड। 6 GHz को हम लोग जनरली ऑफ ही रखते हैं, राइट। 5 GHz स्टेटस एनेबल्ड, 2.4 GHz स्टेटस एनेबल्ड, राइट। सिक्योरिटी, देयर इज मल्टीपल सिक्योरिटी ऑप्शन। ओके, अगर आप पैरामीटर के हिसाब से जाओगे, देयर विल बी लेयर 2, लेयर 3, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मीन्स द रेडियस सर्वर। यहाँ पे आप रेडियस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर पाओगे। रेडियस सर्वर क्या है? रेडियस सर्वर इज द authentication server that can push the username and password for your internet access for either for the internal employees or for the either or for the guest profiles, sorry, guest users. Okay, uh, there is a multiple way to authenticate. Okay, there can be a MAC binding, MAC authentication. There can be user ID and password. There can be policy mapping. There can be policy based access. Okay, there will be multiple way, and in guest access there will be another multiple options. There can be sponsor authentication. There can be self sponsor authentication. There can be sponsors portal authentication. जैसे ही मान लो कि गेस्ट आता है, गेस्ट आके कोई SSID को कनेक्ट करता है जो कि गेस्ट के लिए ही बना हुआ है। कनेक्ट करने के इमीडिएट उसके पास एक पोर्टल आएगा। दैट पोर्टल विल आस्क फॉर द व्हाट इज द गेस्ट नेम, व्हाट इज द टाइटल, ओके, what is the phone number, email ID, what is the company name, whom he wanted to visit, okay, what is the email address, what is the the reason for the visit, okay, there will what is the time duration, right। वो एक फॉर्म टाइप का आएगा, वो सब फिल्ड अप करने के बाद जैसे वो नेक्स्ट करेगा, दैट रिक्वेस्ट इज गोज टू द आईटी पर्सन। ओके, आईटी पर्सन वो उसको वेरीफाई करेगा कि ये पर्सन नेटवर्क पे आया हुआ है, ही वांटेड टू कनेक्ट एंड ट्राई टू यूज अवर इंटरनेट कनेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर अ इंटरनेट कनेक्शन। जैसे ही वो उसको कनेक्ट उसको वेरीफाई करेगा एंड ही विल आस्क फॉर द ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जैसे ही वो उसको वेरीफाई करेगा, हाँ दिस बंदा इज ओके टू ही इज द प्रॉपर पर्सन,
we can give him the internet connection. तो इमिडिएटली वो अप्रूव, वहां पे दो ऑप्शन आएगा ईमेल पे, आइदर डिनाई और अप्रूव. ओके, जैसे अप्रूव करेगा that person will get the IP address, sorry IP address पहले मिल चुका होगा. That person will get the DNS address and the internet access. Okay, for 1 hour, 2 hour, uh, for 1 day or 2 day, up to 7 day. Okay, so he can use the internet that can define in the policy server, the radial server as per the customer definition. मोटा मोटा यही रेडियस सर्वर का फंक्शन है. और क्या फंक्शन है, इसको आप एज ए डिवाइस ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हो. मान लो कि कस्टमर के पास 100 स्विचेस है. ठीक है, अब 100 स्विचेस के लिए वो थोड़ी 100 यूजर नेम पासवर्ड सेट करेगा, वो 100 स्विच को रेडियस सर्वर में ऐड कर देगा. ठीक है, एज ए नेटवर्क डिवाइस. ओके, नेटवर्क डिवाइस ऐड कर देगा थ्रू SNMP. ओके, ऐड करने के बाद एक यूजर नेम पासवर्ड सेट करेगा, उस यूजर नेम पासवर्ड से वो सारा डिवाइस को एक्सेस कर पाएगा. उसमें भी प्रिविलेज सिलेक्ट कर सकते हो. मान लो कि कस्टमर के पास 5 IT बंदा है, उसमें एक है, दोनों को रखा है कॉन्फ़िगरेशन पे और तीनों को रखा है ट्रबल शूटिंग पे. तो तीनों को जो रखा है उनको तो कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस देने का जरूरत नहीं है, उनको बस शो का प्रिविलेज दे दिया. ठीक है, और बाकी दोनों को जो है उनको कॉन्फ़िगरेशन लेवल का बंदा है, L3 लेवल का, उनको कॉन्फ़िगरेशन एंड शो दोनों का प्रिविलेज देकर रखते हैं. ठीक है, तो सबके पास अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड है और उसका लॉग भी क्रिएट होता है Cisco आइस में कि कौन कब कहाँ कौन सा डिवाइस से इसको मेरा स्विच को नेटवर्क स्विच को एक्सेस कर रहा है. तो टॉप ऑफ द हेड जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो Cisco आइस पे लॉग इन करके उसको देख पाएगा कि कौन कौन से यूजर आईडी पासवर्ड से स्विच फायरवॉल को लॉग इन कर रहा है. ठीक है, so that can be that type of granular level of authentication can be done, can be can be can on a level of network security can be maintained by radius server. Okay, अभी ये लेयर 3 है. लेयर 3 में भी आप इसमें वही है, ये ट्रिपल है और ये लेयर 3 में भी है, रेडियस सर्वर ही आप ऐड कर पाओगे. ठीक है, नन मतलब कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं, जस्ट कनेक्ट करो एंड प्ले करो. ठीक है, WPA2 WPA3 मोरलेस सेम ही है. यहाँ पे PS के तरफ सिलेक्ट करते हो, बस वन सिंगल पासवर्ड यू कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट. ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर SSID. 8.1x मतलब आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड. इसके लिए सॉरी, guys. So .1x मतलब username and password, that is also required the radius server. Okay, MAC filtering can be configured. Okay, authorization list. MAC filtering also required the authorization server, that is AAA server. AAA contain of accounting, authorization and authorization, accounting and okay, what is the AAA server? Form. Authentication, authorization and accounting. Sorry, मैं भूल गया था. Authentication for the user. Authorization means authentication से पहले authorization आता है कि वो मांग रहा है किसी से authorized कि हाँ मुझे access चाहिए, तो he should be authorized me, right? Accounting, authorization and authentication, authorization
एंड अकाउंटिंग मीन्स जो जो क्रेडिबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको वेरीफाई करना, ठीक है, दैट इज द ट्रिपल ए फंक्शन, राइट? सो दैट वे वी कैन कॉन्फ़िगर द any WLAN or the SSID. Okay, any question, guys? Any question? সোমনাথ, हेलो, सुना যাচ্ছে? बोलो। हाँ सुना अच्छा बोलो। अच्छा, अगर यहाँ पे मेरा कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रहता है तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर आईडी के साथ क्या मैपिंग का कुछ है इधर, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ हम लोग मैपिंग कर सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड द आवर रेडियस सर्वर। हम लोग यहाँ पे जो यूजर कनेक्टिविटी होगा, जो यूजर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होगा, that user must be either from the Active Directory server or the Cisco ICE authentication server. Cisco ICE having Cisco ICE के पास अपना डेटाबेस है, अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी है जिसमें हम लोग यूजर को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। Cisco ICE is already मतलब also a वो एक्ट एज ए रेडियस सर्वर, ओके, वो रेडियस सर्वर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है, और यू कैन इंटीग्रेट विद सिस्को वॉइस ऑन और ए थर्ड पार्टी रेडियस सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूरे और AWS, राइट? उसके साथ भी आप उसको इंटीग्रेट करके ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन थ्रू वायरलेस कंट्रोलर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप कोई भी कमांड रन कर सकते हो, जैसे कि आपने एग्जीक्यूटिव कमांड जैसे रन शो रन किया, रन कमांड का, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके पिंग का कमांड, पिंग का कमांड यहाँ पे आएगा, सॉरी, पिंग एंड टेस्ट। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन मान लो 8.8.8.8 है, ठीक है, आपने सोर्स यहाँ पे डाला विलन 11, पिंग करते हैं, या इट इज कनेक्टेड, यहाँ पे स्टैटिस्टिक भी दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप पैकेट कैप्चर कर सकते हो, डिबग कर सकते हो, लॉग्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है, लॉग कैप्चर कर सकते हो, सिसलॉक सर्वर से ऐड करके सिसलॉक सर्वर में भी लॉग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पिंग प्रीसेट कर सकते हो। कितना दिन का लॉग स्टोर रहता है यहाँ पे मोटा मोटी? ये
ये डिपेंड ऑन योर सिस्लॉक सर्वर। ओके, उसका क्या आपका अलग से कोई स्टोरेज फंक्शन है अलग से कि इतना जीबी का स्टोरेज कैपेसिटी है, ऐसा कुछ कैपेसिटी है? नहीं 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 नहीं, देखो इसमें एक डिफॉल्ट स्टोरेज आता है, ठीक है, जो कि मिनिमल है। ठीक, कितना होगा, जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी 8-9 GB होगा, ठीक है। तो 8-9 GB पे जितना आएगा तो वो आएगा, उसका कुछ मतलब ये नहीं है। 15 दिन भी हो सकता है, 30 डेज भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द हाउ मेनी एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड, हाउ मच योर क्लाइंट्स। ओके, जितना आपका क्लाइंट्स होगा, जितना एक्सेस पॉइंट होगा, उतना यहाँ पे डेटा कलेक्ट लॉग जनरेट होगा, राइट। तो वो जो लिमिटेड स्टोरेज है उसमें डिपेंड करता है कितना आपका क्लाइंट और ये है। अगर आप यहाँ पे सिसलॉक सर्वर ऐड करते हो, ओके, सिसलॉक सर्वर ऐड करने के बाद आपका सिसलॉक सर्वर पे अगर जितना डेटा रहेगा उतना इस हिसाब से आप इसमें लॉग ये करो, लॉग मेंटेन करो। 6 महीना, 1 साल, एक VMware बना के कस्टमर अकाउंट में उसको सिसलॉक सर्वर डाल के उसमें IP डाल के इसको ऐड कर दो सिसलॉक सर्वर पे, राइट। ठीक है, गॉट इट। हेलो। हाँ, ओके ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटर में हम लोग एडमिन बना सकते हैं, यहाँ पे यूजर बना सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट मीन्स यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं अगर कस्टमर ने। हाँ हाँ। हम्म, नहीं नहीं नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, पेन ड्राइव से बूट कर सकते हो, पेन ड्राइव से बूट कर सकते हो, और पेन ड्राइव से आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हो, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से। लेकिन स्टोरेज एज ए स्टोरेज यूज नहीं कर सकते हो, ये सपोर्टेड ओनली द नेटवर्क स्टोरेज। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज कॉन्फ़िगर द, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना। तो जैसे कस्टमर इसको खरीदता है, या कोई भी सिस्को का सामान खरीदता है, तो कस्टमर का एक कॉन्ट्रैक्ट आईडी क्रिएट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट आईडी जैसे क्रिएट होता है, तो कस्टमर को एक्सेस मिलता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ठीक है, टैक्स सपोर्ट, रेज, RMA, इनिशिएशन, तो इस सब का एक्सेस मिलता है स्मार्ट अकाउंट से। तो कस्टमर ने सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पे जाके वहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड करके जो अपडेटेड वर्जन है उसको सिलेक्ट करके ऐसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और ही कैन यूज द सॉफ्टवेयर अपग्रेड। हाँ, ठीक है, तो ऐसे वो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर पाएगा। यहाँ से बैकअप एंड रिस्टोर बिफोर अपग्रेडिंग एनी सॉफ्टवेयर, यू नो ऑल यूर द टेक्निकल पर्सन, तो बैकअप इज मैंडेटरी। तो आप इसको कोई भी डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को आपने बैकअप ले लिया TFTP सर्वर पे, ठीक है, या FTP सर्वर पे, और डाउनलोड फाइल HTTP मीन्स आपका लोकल जो डिवाइस है उसमें आपने
startup config.cfg ये फाइल को डाउनलोड कर लिया, ताकि अगर आपका कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप इसको रिस्टोर कर पाओ कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है। DNS, configuring the DNS server. You can add the DNS server as well here. DHCP pool, यहाँ पे आप DHCP pool बना सकते हो, multiple DHCP pool you can configure, okay, for your various customers, various department like HR, marketing, sales. तो जैसे जैसे वो उसका डिपार्टमेंट होगा या बिल्डिंग होगा या अलग कोई लोकेशंस होगा, तो उसके लिए वो DHCP pool बना सकते हैं। इस तरह से कस्टमर को IP मिलेगा। ठीक है। तो मोटा मोटा वायरलेस कंट्रोलर का यही है। तो इसको अगर ऐसे आप कॉन्फ़िगर करोगे तो ये ऑपरेशनल हो जाएगा। एनी क्वेश्चन गाइस? एनी क्वेश्चन? ओके। तो मोटा मोटा यही है। मेराकी वायरलेस को मेरा ये था कि मेराकी वायरलेस को ले मैं खुद कुछ करूँ, तो मेराकी वायरलेस का मैं सेशन एक हफ्ता बाद कंडक्ट करूंगा। आज कौन सा डेट है? 21 है, तो 28 28 को मैं मेराकी मेराकी का ये रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो उस दिन 1 घंटा only we are discussing about the Meraki wireless session, Meraki wireless things, okay? 28 hopefully। तो 4:30 से मेरा कॉल है, क्लाइंट कॉल। सो आज यहीं पर खत्म करते हैं। होपफुली आई थिंक गाइस दिस सेशन विल बी यूजफुल टू यू, राइट? हेलो। थैंक यू सोमनाथ। Okay, thanks everyone to join this session. Thank you everyone, thanks।